Hello everyone, welcome to Dronacharya IAS and today we are going to discuss some very important The Hindu newspaper articles. आइए शुरू करते हैं डिस्कशन. सबसे पहला आर्टिकल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा. इट इज़ रिगार्डिंग दी इंडिया एंड चाइना रिलेशंस. तो राइट नाउ यू मस्ट बी नोइंग दैट G20 summit is going on and it is taking place in Rio de Janeiro. So that is why you must know the important countries which are included in G20. But for now we must discuss India and China. They have discussed the return of flights at G20 summit. So you must have covered the news in the last month, that is near 21st October and 23rd October. उसके अराउंड एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया गया था इंडिया एंड चाइना रिलेशंस में. तो उस स्टेप के बारे में अगर हम बात करें, इट वॉज द साइड लाइन्स ऑफ द ब्रिक्स समिट. वी हैव कवर्ड दिस ब्रिक्स समिट इन डिटेल. इफ़ यू हैव नॉट सीन दोज वीडियोज़ यू माइट गो बैक एंड री वॉच इट. राइट तो उसमें कजान में जो समिट हुई थी, कजान इज लोकेटेड इन रशिया. ब्रिक्स समिट की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया था. दैट वाज डिसएंगेजमेंट एट LAC, दैट इज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जो इतने सालों से आफ्टर कोविड यू कैन से इतने सालों से एक स्टैंड ऑफ चल रहा था, दैट हैज़ एंडेड एंड नाउ देयर इज अ disengagement at LAC which has started in October 21 and regular patrolling by both side armies has resumed. That was a major step in India-China relations. Now again at the international forum, that is G20 international summit में sidelines में एक और important step लिया गया है. There were no direct flights to the China from India and vice versa. Now these flights have been resumed and visa applications and journalist traveling, river data sharing, these all things have been resumed and they can be seen as a step ahead in the India-China cooperation and India-China relation. इस आर्टिकल में इन्हीं सब टॉपिक्स के बारे में बात करी गई है. that now India-China relations are resuming and they might go a one step ahead in future also, and the resumption of these bilateral relations might help India and China in the strategic approach and also in the military disengagement, because the military engagement and the standoff has costed both the countries heavily. Now we have moved away from those standoffs and we have disengaged on the borders, especially LAC, line of actual control, and now we have started patrolling, regular patrolling from Indian side also and from that side also. So now here what the steps, what they have agreed on, they have decided to take the next step in the relationship, including resumption of the direct flights. Direct flights जो अभी तक बंद थी after COVID-19 वैसे ही बंद कर दी गई थी direct flights from China, and later on because of the standoff at LAC these flights never resumed really, right? So now these resumption of these flights will be taking place. Next is visa approvals, journalist permission, journalists can visit each other's countries, and river data sharing, especially regarding Brahmaputra, and allowing the Indian pilgrims to visit Kailash Mansarovar. So these are some important steps which have been discussed, which have been agreed to be taken by both the countries in the sidelines of G20 summit, which is going on in the Rio de Janeiro, right? Last जो हमने approval देखा था, that was taken in the Kazan, which was where the BRICS summit took place, this year's BRICS summit, and उसकी तरफ से हमने फिर बाद में disengagement को proceed किया है. Now here what is talked about, that according to a statement by Chinese minister, तो यहाँ पर और क्या बात करी गई है कि जो ये direct flights का resumption है, इसकी वजह से क्या होगा, now we will be reaching a one step ahead in the relations, and also this can also commemorate the 75th year of the diplomatic engagement of both the countries in 2025. So now we have established these diplomatic relation with China. So अभी ये 75th anniversary होने वाली है diplomatic relations with China. So this is very important step. This is a major step in commemorating those relations, in commemorating those bilateral relations, good relations, right? So this might also impact both countries' militaries,
military engagement, military exercises can also be seen in future. If everything goes on fine, if everything is better, then we can see in future there might be some military exercises also. We can also see trade relations improvement. Trade relations might improve because, as you know, now USA and China might be facing some problems in the trade aspect. We will be discussing a slightly new article regarding the US and China trade relations. तो उसमें भी अब यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है, FDI इन्वेस्टमेंट है, वो भी यहाँ पर हमें शिफ्ट होते हुए देखने को मिल सकती है. राइट नाउ वी आर नॉट वेरी श्योर ऑफ दीज स्टेप्स, बट येस वी माइट एक्सपेक्ट, अगर ये स्टेप्स लिए गए हैं, अगर जो रिलेशंस हैं वो रिज्यूम करते हैं बायलैटरल रिलेशंस, देन वी कैन अज्यूम दैट इन फ्यूचर बोथ द कंट्रीज माइट गो अहेड इन दीज एस्पेक्ट्स. ट्रेड में भी हेल्प कर सकता है, साथ में जो डायस्पोरा कनेक्शन है दैट माइट ऑल्सो इम्प्रूव. ठीक है, and other aspects have been talked about here in this article itself. It is talking about the flights, resumption of flights, visas and river data sharing. So this was all in this article. इसके बाद जो ये steps formalize किए जाएंगे, उसके बाद we'll be discussing it again, and the major impacts on both the countries will also be discussed in the next articles, right? Okay ji, moving on to the next article. Just a second. Okay. Yes, two important articles have been, you can see here two important articles which are related to the India and Italy relation, and also yesterday, if you have not seen the videos, kindly see that video. We have discussed in detail Sagar Manthan, which is a ocean dialogue between various countries. Near about 60 countries have participated, and around 1700, this is just a data, 1700 countries से participants यहाँ पर आए हैं, and this has been carried out by India and Ministry of Ports, Shipping and Waterways, and also co-paneled by the Observer Research Foundation. तो ये सागर मंथन के बारे में बात करी गई है इसमें, and here we can talk about India and Italy relations, right? India and Italy relations are very good. You might be knowing about it. तो India and Italy now have taken a step ahead. जैसे कि हम देख पा रहे हैं, with all the countries on the sidelines, this also has taken place. This agreement has also taken place on the sidelines of the G20 meeting, right? G20 में बहुत सारे countries जो भी participant, जो भी members हैं, उनके साथ यहाँ पर sidelines में जो meetings होती हैं, उसमें important issues को discuss किया जाता है. जो lacunas हैं international, जो भी आप bilateral relations में, उनको भी यहाँ पर discuss किया जाता है. तो यहाँ पर Italy and India के बीच में जो agreement हुआ है, that has taken place on the cooperation of the maritime and the port sector, plus joint strategic action plan which is 2025 to 2029. आगे आने वाले 5 सालों में क्या strategic planning करनी है, various issues पर क्या strategy बनानी है, that is focused on this plan. एक special plan बनाया गया है both countries के लिए, right? Then साथ में एक defense agreement, defense industrial road map भी बनाया जाएगा between the two ministries, and इसके साथ साथ यहाँ पर defense and security में एक important major step यहाँ पर लिया जाएगा. We can होप इटली और इंडिया के बीच में एक मेजर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का एग्रीमेंट साइन होता हुआ हमें नेक्स्ट कुछ सालों में देखने को मिल सकता है. साथ में यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इटली के लिए भी ये एक फायदेमंद चीज है, बिकॉज इटली एंड इंडिया बोथ कैन हैव, बिकॉज दे कैन ऑल्सो, इटली इज मेजरली इन द एरिया ऑफ Atlantic and Mediterranean Sea. Now here Italy can also create an influence in the Italy can also create a Pacific in the Indo-Pacific region, right? Aimed at increasing interoperability and cooperation, including negotiation of any I'm sorry, extremely sorry. ओके जी, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि इंटर ऑपरेबिलिटी एंड कॉपरेशन इंक्लूडिंग नेगोशिएशन ऑफ एनी यूजफुल अरेंजमेंट सपोर्टिंग सच इंटरेक्शन. तो कॉपरेशन किया जाएगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की भी बात करी जाएगी. देन ऑन दी G20 साइडलाइंस की अगर हम बात करें, डिफरेंट नेशंस के साथ इंडिया की साइडलाइन मीटिंग अभी होने वाली है, एंड उसमें एक मेजर जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात करी जाएगी, वेरियस कंट्रीज के साथ जो मिलिट्री एंगेजमेंट्स हैं उनकी बात करी जाएगी, मिलिट्री एक्सरसाइजेज. लेटेस्टली अगर हम देखें इसी साल में कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स एक एक्सरसाइज है जिसमें इंडिया की नेवी एंड इटली की नेवी ने भी पार्टिसिपेट किया. इंडिया की तरफ से INS विक्रमादित्य एंड INS विशाखापट्टनम, बोथ आर दी मिलिट्री एयरक्राफ्ट कैरियर शिप्स. They have participated in this exercise, and it was for the first time जिसमें विक्रमादित्य एंड विशाखापट्टनम
dono INS, they took part in a single exercise, right? Then here in this article we can see India's vision for free, open and maritime network is finding resonance across the world. India has reiterated its stand on the importance of the ocean. Oceans are the shared heritage for the nations and societies, and they are the lifeline for the maritime trade. You can always and always start your answer with this paragraph, with this line, because it is very, very useful. This has been reiterated again and again, used by the Prime Minister of India, right? So he has always shown the importance of oceans, and has always reiterated the shared heritage of these to the society, to the nations, to the mankind. So how we can use maritime, how we can use oceans for the trade connectivity and people to people ties, right? तो हमेशा कभी भी अगर आपको इंडो पैसिफिक की बात करी जाए, IOR की बात करी जाए, you can always start your answer using this part, right? these जो इस प्रकार के जो आपको आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं, यही आपको मेंस में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं फॉर इंट्रोडक्टरी पार्ट एंड फॉर द कंक्लूजन पार्ट. बहुत बार बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखे, कंक्लूजन कैसे लिखे. तो जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ट्राई टू एनालाइज कि वो स्टार्ट कैसे कर रहे हैं, वो क्या बैकग्राउंड आपको दे रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने आपको इंट्रोड्यूस किया है उस टॉपिक के साथ. इसी प्रकार आप भी इस ये जो तरीका आपको दिखाया जाता है, इस जो ट्रिक आपको दिखाई जाती है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में, बिकॉज इट कैन ऐड सो मच ऑफ वैल्यू टू योर एग्जाम. बिकॉज क्या है, टू योर आंसर, बिकॉज क्या है, ये जो आपके आंसर्स हैं, दीज आर रिजोनेटिंग विद योर लैंग्वेज ऑल्सो, एंड दीज आर रिजोनेटिंग विद योर करंट अफेयर्स ऑल्सो. तो आपको ये देखना है कि करंट अफेयर्स में भी ये करंट को कैसे लिंक कर रहे हैं, या करंट अफेयर्स में भी कौन सा डाटा यूज़ कर रहे हैं, या करंट अफेयर में कौन सा एक जो कोट है, कोटेशन है, या दोबारा जो भी बातें करी जाती हैं फ्रॉम द लीडर्स ऑफ द कंट्रीज, उनको कैसे यहाँ पर यूज़ किया जाता है इन द इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन. तो न्यूज़पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है. आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ और सिर्फ आपको टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए. यू शुड रीड इट. रीडिंग से क्या होता है, यू एनालाइज इट योरसेल्फ ऑल्सो. एक अपना एनालिसिस डेवलप होता है, एक अपने आप आपकी तैयारी होती है, साथ में आपको समझ आता है कि दुनिया में क्या चल रहा है. न्यूज़पेपर रीडिंग इज मस्ट फॉर ईच एंड एवरी पर्सन, right? Not only for UPSC aspirants, for everyone, newspaper should be basic necessity. ठीक है? Okay. For the preparation I'm saying. Then stating that oceans are shared heritage, तो shared heritage इनको बुलाया गया है, lifeline for international trade बताया गया है. तो यहाँ पर सागर मंथन जो डायलॉग हम बात कर रहे थे, सागर मंथन का जो ओपनिंग डायलॉग है, इट इज़ अ ओशन डायलॉग, जिसमें हम ट्रेड कनेक्टिविटी की बात करते हैं, ओशन कनेक्टिविटी की बात करते हैं. उस डायलॉग में प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से एक अपना कैंप ऑफिस, जो नाइजीरिया में भी वो गए हुए हैं, वहाँ पर नाइजीरिया से उन्होंने कैंप ऑफिस इस्टेब्लिश करके, कैंप ऑफिस से अपना एक जो स्टेटमेंट दिया है, उसमें बोला है कि that we want to transform the last mile connectivity, we want to have the rail connectivity, road connectivity, जिसकी वजह से जो हमारी शोर लाइन है, अगर वहाँ तक कोई सामान आता है, और हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं, इंपोर्ट्स हैं, उनको भी हम एम्पावर करना चाहते हैं थ्रू वेरियस कनेक्टिविटी, बिकॉज वी वांट टू कनेक्ट द शोर लाइन टू द एंड ऑफ द नेशन. मतलब बहुत दूर दराज की जो एरियाज हैं, उनके साथ भी हम डायरेक्ट कनेक्टिविटी करवाना चाहते हैं शोर लाइन की. तो इसमें कोई भी यहाँ पर लैग ना आए, जिसकी वजह से जो एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, मेजरली मैरीटाइम ट्रेड है, वो डेवलप हो सके. साथ में यहाँ पर बोला गया है कि जो मैरीटाइम ट्रेडिशंस हैं, वो इंडिया की हिस्ट्री से भी हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं. हाईलाइट द इंडियाज रिच मैरीटाइम लेगेसी, जस्ट लाइक इफ यू टॉक अबाउट लोथल, वी टॉक अबाउट धोलावीरा, दीज आर दी हड़प्पन साइट्स, एंशिएंट हड़प्पन साइट्स. तो ये भी आपका यहाँ पर बहुत सारे हमें इंसिडेंट्स मिलते हैं फ्रॉम दी सील्स, फ्रॉम दी मटीरियल्स, फ्रॉम दी import and export. We find that they were having the international trade relation through the sea route only. तो उसको भी हम यहाँ पर कोट कर सकते हैं. साथ में उन्होंने कोट किया है छत्रपति शिवाजी महाराज जी को भी यहाँ पर. इसमें he also has added great inspiration for the naval trade, right? तो 2-day dialogue has started on Monday. जो ये सागर मंथन की हम बात करें, तो अभी इसमें लगभग 60 कंट्रीज से 1700 पार्टिसिपेंट्स को हमने यहाँ पर देखा है. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट. आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है सागर मंथन क्या है. सागर मंथन एक एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, या नेवल एक्सरसाइज है,
ये आपसे पूछा जा सकता है। सागर मंथन इज बाइलेटरल स्ट्रैटेजिक प्लान बिटवीन चाइना एंड फिलीपींस, कुछ भी बोला जा सकता है क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती हैं साउथ चाइना सी की वजह से, या नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, या फिर आपको ये भी बोला जा सकता है कि इंडियन ओशन रीजन के बीच में यहाँ पर ये शुरू किया गया है। सागर मंथन आपको ऐसे भी कंफ्यूज किया जा सकता है कि ये कोई साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस रहा है इस साल का, तो यू मस्ट नो सागर मंथन मतलब क्या है। इट इज़ अ डायलॉग रिलेटेड टू द ओशन कनेक्टिविटी एंड पोर्ट्स डेवलपमेंट एंड शोर लाइन डेवलपमेंट। ठीक है जी, आइए चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। Just a second. Yes, here also we can see two articles are important. These articles have been discussed again and again since a week, maybe I can say since a week we are talking about COP29 in Baku, and अब वो अपने एंडिंग फेज की तरफ जा रहा है, एंड उसमें भी दोबारा से इंडिया की तरफ से यही एक बात कही गई है दैट इंडिया इज पेइंग ह्यूज कॉस्ट फॉर द क्लाइमेट एक्शन, सेज इंडिया एट COP29। तो यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा कॉस्ट हमारे ऊपर आ रही है फॉर कीपिंग द टेम्परेचर, ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर टू 1.5 डिग्री सेल्सियस। एंड जो ये मतलब अगर यहाँ पर ये बात करी गई है कि जो हमने पॉल्यूट किया भी नहीं है, जो हमारी तरफ से हुआ भी नहीं है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारे ऊपर है। सो वी नीड अ प्रॉपर फाइनेंसिंग सिस्टम, वी नीड अ प्रॉपर फंडिंग सिस्टम हियर, राइट। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो नेट जीरो टारगेट्स हैं उनको अगर ये फंडिंग प्रोसेस अगर नहीं दिया गया तो वो जल्दी से अचीव भी यहाँ पर नहीं हो पाएंगे। एंड डिस्पाइट नॉट बीइंग अ कंट्रीब्यूटर, कि हम कंट्रीब्यूटर भी नहीं हैं, तो इस वजह से क्या है, ग्लोबल साउथ इसकी एक ह्यूज कॉस्ट बियर कर रहा है। एंड नाउ कंट्रीज आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू रिन्यू देयर नेशनली डिटरमाइंड जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उनको रिन्यू करने का भी टाइम आ गया है। फॉर दैट अगर यहाँ पर जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं या साउथ, जो ग्लोबल साउथ हम बोलते हैं, अंडर डेवलप्ड जो एरिया हम बोलते हैं ग्लोबली, तो अगर उनसे आप चाहते हैं कि ये जितने भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं कि एनडीसीज की बात करी जा रही है, कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करने की बात करी जा रही है, या फिर अगर हम स्पेसिफिकली यूरोप का एग्जाम्पल ले जिसमें कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म CBAM की बात करी जा रही है, तो ये जो सारे आप इम्प्लीकेशंस लगा रहे हैं, जितना भी आप चाह रहे हैं कि ये कार्बन एमिशंस कम हो एंड यू आर इम्पोजिंग दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द ग्लोबल साउथ, तो उसको अचीव करने के लिए, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए, वो इकोनॉमी को ट्रांजिशन करने के लिए, या फिर जो न्यू एनडीसीज हैं उनको अचीव करने के लिए, या जो पिछला एनडीसी है एटलीस्ट उसको अचीव करने के लिए वी नीड अ प्रॉपर फंडिंग मैकेनिज्म, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, डेवलप्ड वर्ल्ड है, ग्लोबल नॉर्थ हम बोल सकते हैं, या इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज को बोल सकते हैं, हु आर कंसिडर्ड एज द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर टुवर्ड्स द कार्बन एमिशन एंड मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर टुवर्ड्स द क्लाइमेट चेंज। तो बार बार इंडिया की तरफ से एक डेवलप्ड एक जो NCGQ हम बात कर रहे हैं, न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल की बात हम कर रहे हैं, NCQG, तो यहाँ पर बोला गया है कि एक बहुत ही जल्द एक NCQG को फाइनलाइज किया जाना चाहिए एंड एक प्रॉपर फाइनेंसिंग मैकेनिज्म यहाँ पर होना चाहिए जिसमें ट्रांसपेरेंसी, गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी तीनों की तीनों जो चीज़ें हैं वो फाइनलाइज की जानी चाहिए। यू मस्ट बी रिमेंबरिंग कि अब तक COP29 बाकू में एक इंपॉर्टेंट स्टेप लिया जा चुका है, दैट इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कार्बन मार्केट, जिसमें कार्बन क्रेडिट्स को हम शेयर करते हैं, ऑफसेटिंग ऑफ द कार्बन एमिशंस को भी हम यहाँ पर प्रमोट करेंगे, एंड जो ये इनकी प्राइसिंग है दैट विल बी मार्केट बेस्ड, राइट। तो अगर आपने कार्बन क्रेडिट स्कीम्स नहीं करी हैं, कार्बन क्रेडिट मार्केट नहीं किया है, तो यू मस्ट गो एंड वॉच द प्रीवियस वीडियोस, वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल अबाउट दिस आर्टिकल। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर बात कर रहा है गवर्नमेंट अलाउज सेल्फ सर्वे फॉर फेज 2 ऑफ PM आवास योजना। स्पेसिफिकली यहाँ पर PM आवास योजना के बारे में हम बात करेंगे। फेज 2 ऑफ PM आवास योजना हैज आई एम रियली सॉरी, ओके। तो यहाँ पर हम बात करते हैं गवर्नमेंट अलाउज सेल्फ सर्वे फॉर फेज 2 ऑफ PM आवास योजना। तो PM आवास योजना में यहाँ पर फेज 2 स्टार्ट हो गया था 2024 में ये स्टार्ट हो चुका था एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड फॉर द ईयर 2028-2029 तक ये कंटिन्यू रहेगा। फेज 2, फेज 1 हैज़ ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड इन 2022। 2022 में हम फेज 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन इस आर्टिकल में पहले देख लेते हैं क्या बात करी गई है। इस आर्टिकल में बात करी गई है दैट नाउ सेल्फ डिक्लेरेशन, सेल्फ सर्वे विल बी अवेलेबल फॉर द बेनिफिशियरीज अंडर दिस PM आवास योजना ग्रामीण, राइट। इसमें यहाँ पर ये यूज़ किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ अ ऐप दैट इज
आवास प्लस प्लस, आवास प्लस, राइट। तो इसकी हेल्प से यहाँ पर लिया जाएगा। बस इसमें थोड़ा सा नुकसान क्या देखने को मिलता है कि एक मोबाइल फ़ोन से या एक मोबाइल नंबर से सिर्फ आप एक ही सर्वे कर सकते हो, मल्टीपल सर्वेज यहाँ पर हो नहीं सकते। लेकिन इट विल ऑल्सो, अगर हम पॉजिटिव साइड देखें, इट विल ऑल्सो ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी विद इट, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू हेल्प दी बेनिफिशरीज अ लॉट। सेल्फ डिक्लेरेशन यहाँ पर हो सकता है, इसमें कोई झूठा क्लेम, इसमें कोई प्रिजुडिस कुछ भी यहाँ पर क्लेमिंग में नहीं जाएगा। यू कैन क्लेम दी बेनिफिट्स अंडर दी फेज 2 ऑफ द पीएम आवास योजना, राइट। तो अभी हम थोड़ा सा पीएम आवास योजना के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये 2 पार्ट्स में इसको लागू किया गया था। 2015 में पीएम आवास योजना अर्बन लॉन्च करी गई थी एंड 2016 में पीएम आवास योजना ग्रामीण लॉन्च करी गई थी। ग्रामीण, अगर हम आवास अर्बन की बात करें तो इट इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, एंड अगर हम रूरल की बात करें, ग्रामीण की बात करें, तो इट इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो मेजरली यहाँ पर ये स्टार्ट करा गया था 2016 में। 2016 में स्टार्ट करने के बाद इसमें बेनिफिशरीज को हाउसेज, पक्का हाउसेज, जिन घरों में जिन भी लोगों के पास जो बीपीएल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट से हों, उनको एक पक्का हाउस यहाँ पर प्रोवाइड करने की ये स्कीम चलाई गई थी। और ये पक्का हाउस का अब जो एरिया है दैट हैज़ बीन इंक्रीज्ड टिल 25 मीटर स्क्वायर से मिनिमम जो क्वालिटी है कि मिनिमम जो स्टैंडर्ड दिया जाएगा, मिनिमम जो एरिया दिया जाएगा पक्का हाउस का, दैट इज़ 25 मीटर स्क्वायर। मतलब ये हर एक एरिया टू एरिया डिपेंड करेगा। तो इसमें एक जो हम देखते हैं कि इसके अंदर जो बेनिफिशियरीज हैं वो अपने आप को कैसे इसका बेनिफिट ले सकते हैं। 3 स्टेज यहाँ पे प्रोसेस रहेगा। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि SECC, जस्ट अ सेकेंड, SECC 2011 जो सोशो इकोनॉमिक का सेंसस डाटा है उसको यूज़ किया जाएगा कि कौन कौन इसके अंदर बेनिफिट ले सकते हैं। दूसरा, अगर हम देखें तो ग्राम सभा का अप्रूवल बहुत ज़रूरी है। एंड थर्ड पार्ट अगर हम इसमें देखें तो उसमें आपके पास आएगा जियो टैगिंग, कि जियो टैगिंग भी किया जाएगा कि कितने लोगों ने इसके अंदर बेनिफिट ले लिया है। तो ये एक 3 स्टेज प्रोसेस है, 3 स्टेप प्रोसेस है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट, अगर हम इसमें आवास योजना में बात करें तो जितने भी लोग हैं गांव में जो भी रजिस्टर्ड हैं, जो बेनिफिशियरीज हैं, दे कैन टेक बेनिफिट्स फ्रॉम दिस एंड दे कैन अवेल दी पक्का हाउस। अगर हम इस स्कीम की बात करें तो इसमें जो कॉस्ट शेयरिंग रहेगा दैट विल बी 60-40 रेशो, दैट विल बी 60:40, right? 60 will be given by the center and 40 by the states, that is for the plain areas. लेकिन अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट की, that will be 90:10, नॉर्थ ईस्ट या फिर हिली एरियाज का ये रहेगा। एंड अगर हम इसमें असिस्टेंस की बात करें तो प्लेन एरियाज में 1,20,000 रुपये दिए जाएंगे। एंड अगर हम हिली एरियाज की या फिर नॉर्थ ईस्ट एरियाज की बात करें तो 1,30,000 का असिस्टेंस यहाँ पर दिया जाएगा। इस स्कीम के साथ साथ यू कैन कंसिडर दैट दिस स्कीम कंबाइन डिफरेंट स्कीम्स जस्ट लाइक मनरेगा। तो मनरेगा में जो 90 to 95 डेज का वर्क होता है उसके हिसाब से 18,000 रुपीज़ विल बी प्रोवाइडेड अलग से, एंड 12,000 रुपीज़ विल बी गिवन अलग से फॉर द टॉयलेट कंस्ट्रक्शन, बिकॉज स्वच्छ भारत अभियान के अंडर यहाँ पर अलग से पैसा दिया जाएगा हर घर में टॉयलेट बनवाने के लिए। एंड ऑल्सो इट ऑल्सो हेल्प्स इन दी विमेन एम्पावरमेंट विलेज में, ग्रामीण में स्पेसिफिकली, क्योंकि जो भी घर बनाया जाएगा स्कीम के अंडर अवेल किया जाएगा या तो उसकी ओनर विमेन होगी या को ओनर होगी उस घर की, ठीक है। तो इसमें विमेन एम्पावरमेंट को भी ये स्कीम हेल्प करती है। अब इस स्कीम को देखना है, इसमें ये जो अब सेल्फ सर्वे की बात करी गई है कितना यहाँ पर ये हेल्प करता है विद दी आवास प्लस ऐप। तो आपसे पूछा जा सकता है आवास प्लस ऐप हैज़ बीन स्टार्टेड फॉर विच पार्ट ऑफ दिस स्कीम। तो ये फेज 2 ऑफ दी पीएम आवास योजना ग्रामीण के शुरू करी गई है एंड इट इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ, आपको कंफ्यूज किया जा सकता है दैट इट इज स्टार्टेड बाय मिनिस्ट्री, इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। नो, इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। क्लियर है? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल नाउ। Very important article, let us discuss this. There are 2 people who have been awarded, just a second, there are 2 people who have been awarded with Indira Gandhi Peace Prize. They have been given the Peace Prize for 2023. इन दोनों को ये प्राइज मिला है। One is Daniel Barenboim and यहाँ Barenboim and Ali Abu Awad.
दो लोगों को ये पीस प्राइज दिया गया है. वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस पीस प्राइज लेटर, बट पहले हम देख लेते हैं. ही इज़ अ पियानिस्ट. अगर हम डेनियल बेरेनबॉयम की बात करें, ही इज़ अ पियानिस्ट एंड वो उनको मिला क्यों है? बिकॉज विद द हेल्प ऑफ हिज म्यूजिक ही हैज़ ओपन द पीस डायलॉग एंड ही हैज़ contributed for fostering the peace through musical and cultural dialogue initiative. He has taken a musical cultural initiative, so that is why he has been given for this peace prize. And अगर हम बात करें Ali Abu Awad ki, he is a Palestinian. It is said that he was jailed for hunger strike and his brother was killed, but for that justice he striked for, he went on hunger strike for various days and after that he was jailed कि आप hunger strike क्यों कर रहे हैं, but still उनके अंदर जो revenge की भावना है, अपने भाई के बदले की भावना है, that did not take place. and जेल के आने के बाद उन्होंने एक organization start करी जो काम करती है ऐसे ही कामों के लिए. then he wanted to establish the Palestinian peace, बता सकते हैं हम उसको, Israel Palestinian peace के लिए जो काम करती है वो organization इन्होंने start करी, तो उसके लिए इनको क्या मिला है? Peace Prize, right? तो he has started the organization roots for the advocacy for the dialogue through his organization roots and after that he started after spending time in jail. जेल के आने के बाद उन्होंने ये अपनी organization start करी है, so that is why he has got. He has said such nice things in this article. You must read it once by your side. इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि फैक्चुअल आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा उन्होंने क्या कहा क्या नहीं, बट जस्ट फॉर यूजिंग दीज स्टेटमेंट्स इन योर एथिक्स पेपर, इन योर डिफरेंट IR पेपर. अगर आपसे इज़राइल और पैलेस्टीन के वॉर के बारे में बात करी जाए, यू कैन यूज सच स्टेटमेंट, यू कैन यूज हिज एग्जाम्पल दैट द पीस शुड बी हेल्ड अबव एवरीथिंग. पीस को मेंटेन करने के लिए ही, ह्यूमैनिटी को मेंटेन करने के लिए ही सब चीज़ें करी जानी चाहिए. तो यहाँ पर उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दी हैं. ही सेड दैट ही डिड नॉट वांट टू take revenge because he was strong enough to let go of the things. He also reiterated that humanity should be above everything because when he saw the Israeli victims, because Palestine भी अटैक करता है तो Israeli victims के अंदर भी उनको enemy नहीं दिखा. उनका enemy was enemy beyond, वो enemy को सिर्फ enemy की नज़र से नहीं देखना है, एक humanity भी यहाँ पर बहुत important role play करती है. and also जो इनका non violence का struggle है, Palestinian struggle है, that should not go through the Jewish bodies, की उनकी लाशों के ऊपर से नहीं गुजरना चाहिए, उनके दिलों से गुजरना चाहिए. That means he wanted to uphold this humanity, right? तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं. 2023 के जो इंदिरा गांधी पीस प्राइज हैं, they have been given to these both. One is pianist and one is the peace activist. ठीक है. अभी हम अगर बात करें 1986 में इंदिरा गांधी पीस प्राइजेस हैव बीन स्टार्टेड एंड दे आर टू रिमेंबर, दे आर टू ऑनर द लेगेसी ऑफ इंदिरा गांधी. एंड ये दोनों को दिए जा सकते हैं, इंडिविजुअल्स को भी. एंड अगर आप बात करें ऑर्गेनाइजेशंस, बोथ इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन दोनों को ये अवार्ड दिया जा सकता है. इस अवार्ड में 25 लाख रुपीज़ का प्राइज दिया जाता है और एक साइटेशन दिया जाता है. एंड जनरली दीज प्राइज आर डिस्ट्रीब्यूटेड एनुअली. ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ. Just a second. Yes, a little article for discussion. Here we were talking about, on the very front page we have talked about the China and USA tariff barriers के बारे में यहाँ पर बात करी गई है. with the starting of the Donald Trump जो टर्म अभी प्रेसिडेंट की टर्म शुरू हुई है, उसकी वजह से इट इज़ एक्सपेक्टेड कि प्रोटेक्शनिज्म इज़ गोइंग टू राइज. प्रोटेक्शनिज्म मतलब कि अपनी जो कंपनीज हैं, अपनी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, नेशन उसको प्रोटेक्ट करता है ताकि जो इम्पोर्ट्स आ रहे हैं उनके ऊपर टैरिफ्स राइज करके, जब भी अगर मान लो कोई कंट्री ए है उसके अंदर कोई भी इम्पोर्ट आ रहा है और वही चीज़ें उनकी कंट्री में खुद भी बनाई जा रही हैं, तो उसको हम प्रोटेक्शनिज्म कब बोलेंगे कि अपनी जो वैल्यू है प्रोडक्ट्स की उसको तो नॉर्मल आप मार्केट रेट पर चलने देते हैं, लेकिन जो बाहर से इंपोर्ट आ रहा है उसके ऊपर आप हायर टैरिफ्स लगाते हैं, इंपोर्ट टैरिफ्स, जिसकी वजह से उसकी प्राइसेस इंक्रीज करते हैं. बिकॉज जो इंपोर्ट कर रहा है उसको वो महंगा पड़ेगा, बिकॉज उसको उस पर टैक्स देना पड़ेगा सरकार को, तो वो महंगा पड़ेगा. एंड अगर वहाँ से ही महंगा है देन अगर मार्केट तक आएगा तो उसका प्राइस और ज़्यादा इंक्रीज कर
कर जाएगा, जिसकी वजह से उस प्रोडक्ट की मार्केट खत्म होने के चांसेस हैं, एंड जिसकी वजह से जो इंपोर्ट्स हैं उनकी डिमांड डिक्रीज करेगी एंड जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा, एंड डोमेस्टिक जो मार्केट है उसमें डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स की ही डिमांड यहाँ पर हमें बढ़ती हुई दिखेगी। दिस इज ऑल अबाउट प्रोटेक्शनिज्म। अगर हम सिंपल टर्म्स में समझे, अगर हम सिंपल जो जिसको कुछ भी नहीं पता है प्रोटेक्शनिज्म के बारे में, वो इस तरीके से समझ सकता है कि अपनी कंट्रीज को प्रोटेक्ट करना है, गले लगा के रखना है कि आप हमारे अपने हैं, वो हमारे पराए हैं, तो उनके लिए हमें नहीं सोचना है, उनको हम रेट उनका महंगा कर देंगे, आप लोगों के लिए सस्ता कर देंगे, ताकि आपके मार्केट, आपके प्रोडक्ट से जो सारी मार्केट है वो फ्लड कर जाए एंड दूसरों के लिए जगह ही ना बचे। सिंपल टर्म्स में अगर हम समझना चाहें तो इज इम्पोजिंग टैरिफ्स ऑन चाइनीज इंपोर्ट गुड आइडिया। तो इसमें मेजरली सिंपल यूएसए और चाइना के बारे में ही बात करी गई है, लेकिन इसका इम्पैक्ट हमारे लिए, वाई आर वी डिस्कसिंग, बिकॉज इसका इम्पैक्ट हो सकता है कि पूरे ग्लोबल इकोनॉमी पर भी पड़े, एंड एज इंडिया हैज़ अडॉप्टेड एलपीजी रिफॉर्म्स, इंडिया इज अ ग्लोबलाइज्ड कंट्री, इंडिया इज अ लिबरलाइज्ड कंट्री, सो दैट इज वाई वी कैन से अगर ग्लोबल इकोनॉमी पे इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है और वो इम्पैक्ट माइट बी इन्फ्लेशनरी, इन्फ्लेशन इसमें हमें बढ़ती हुई दिख सकती है, राइट? तो वो इन्फ्लेशन का जो प्रेशर है, इट माइट ऑल्सो इम्पैक्ट इंडिया इन बोथ पॉजिटिव ऑल्सो इन दी नेगेटिव सेंस ऑल्सो। देयर इज अ रिस्क अटैच टू इट एंड देयर इज अ बेनिफिट अटैच टू इट। अगर बेनिफिट की बात करें तो एफडीआई, देयर माइट बी अ शिफ्ट इन एफडीआई एंड इन्वेस्टमेंट टुवर्ड्स इंडिया, our market is open for investment and foreign direct investment, तो उसमें हमें बेनिफिट मिल सकता है। साथ में एक रिस्क यहाँ पर आ रहा है, दैट इज इन्फ्लेशनरी प्रेशर। ऑलरेडी इंडिया इज गोइंग थ्रू अ हाई इन्फ्लेशन, वी हैव ऑल्सो समवेयर ब्रीच्ड, अगर हम रूरल लेवल पर जाएं, we have breached the upper limit 6.2 लास्ट मंथ हमने वो ब्रीच कर दी है। तो नाउ एक इन्फ्लेशन जो ऑलरेडी इंडिया में चल रही है, अगर ये प्रोटेक्शनिज्म स्टार्ट होता है एंड वी आर नॉट एबल टू कंटेन दैट इन्फ्लेशन, वी आर नॉट एबल टू कम अक्रॉस दैट, डिक्रीज द लिमिट ऑफ इन्फ्लेशन जो अभी बढ़ी हुई है बहुत ज़्यादा इंडिया में, और साथ में अगर प्रोटेक्शनिज्म बढ़ता है, ग्लोबल इन्फ्लेशन राइज करती है, इट माइट ऑल्सो लीड टू दी राइज इन द प्राइसेस ऑफ इम्पोर्ट्स फॉर इंडिया एज वेल, बिकॉज जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसके ऊपर अगर असर पड़ेगा, देन इट कैन ऑल्सो इम्पैक्ट द इम्पोर्ट्स फॉर दी इंडिया, एंड इसकी वजह से जो हमारी मार्केट है उसमें भी इन्फ्लेशनरी एक रिजल्ट हमें देखने को मिल सकता है। अभी आने वाले समय में इनकी जो पॉलिसीज चेंज होने वाली हैं, एक पहले भी जो लास्ट टर्म थी डोनाल्ड ट्रंप की, उसमें भी हमें एक ट्रेड वॉर देखने को मिला था यूएसए और चाइना के बीच में, एंड नाउ इट इज एक्सपेक्टेड अगेन कि डोनाल्ड ट्रंप इज गोइंग टू अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शनिज्म, एंड ही माइट ऑल्सो लीड, दिस माइट ऑल्सो लीड to the increase in the inflation globally, and this might indirectly impact the Indian inflation, which is already at its high, right? So that's all for today's discussion. Keep reading newspaper. We have discussed the newspaper holistically regarding the important topics, तो आप इनको पढ़िएगा newspaper को, like the video, share the video and subscribe the channel. Thank you and have a nice day.